امریکی ریاست یوٹا میں ایک غار ہے جسے نٹی پٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے دریافت تو 1960 میں کیا گیا تھا، لیکن 24 نومبر 2009 میں جون جونز نامی ایک کیو ایکسپلورر کی قیادت میں ایک ٹیم جب اس غار کے اندر داخل ہوئی تو یہاں ایک ایسے دل دہلا دینے والے واقعے نے جنم لیا جسے آج بھی تاریخ کا ایک بھیانک واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ 24 نومبر 2009 کی تاریخ تھی جب ایک 26 سالہ لڑکا جس کا نام جون جونز تھا اپنی جاب سے چھٹی لے کر امریکی ریاست یوٹا میں واقع اپنے آبائی گھر پہنچا۔ جب وہ فیملی اور دوستوں سے ملا تو ان سب نے مل کر پلان بنایا کہ کیوں نہ چھٹیوں میں کچھ الگ کیا جائے۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ وہ پاس ہی موجود ایک نٹی پٹی غار میں جائیں گے اور وہاں جا کر ایکسپلور کریں گے، دریافت کریں گے کہ آخر وہاں کیا ہے۔ واضح رہے کہ نٹی پٹی غار کی چوڑائی بہت ہی کم ہے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 فٹ اس کی چوڑائی ہوگی۔ 2009 سے پہلے بھی کئی بار اس غار میں بہت سے واقعات ہو چکے تھے۔ اسی بات کے پیش نظر اس غار کو جان لیوا خیال کرتے ہوئے امریکی حکومت نے اس پر پابندی بھی لگائی اور اسے سیل کر دیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ پیش آیا کہ بہت سارے مقامی وزٹرز اور باہر کے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور اس غار کو دوبارہ کھولنے کے لیے بڑے پیمانے پر ایک مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مجبوراً حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑے اور مارچ 2009 میں ایک بار پھر سے اس غار کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، لیکن ساتھ ہی اس کے کچھ SOPs بھی بنائے گئے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو بھی گروپ ان غار کے اندر جانا چاہتا ہے ان میں کم از کم 2 ماہر اور تجربہ کار کیو ایکسپلورر کا ہونا ضروری ہوگا جنہیں اس کام کا کافی تجربہ ہو۔ اور ایسا ہی ایک گروپ بنا 24 نومبر 2009 کو، جس میں جون جونز اور جوش جونز دونوں بھائی شامل تھے اور ان دونوں کو غاروں میں جانے کا کافی تجربہ تھا۔ یہ دونوں بھائی کافی عرصے سے مختلف غاروں کی خاک چھانتے آئے تھے، لہٰذا اس گروپ کی قیادت بھی ان 2 بھائیوں کے سپرد کر دی گئی۔ جون بڑا تھا اور اس کا تجربہ بھی چھوٹے بھائی سے زیادہ تھا، چنانچہ وہی سب سے آگے ہو لیا اور وہ لوگ رات 8 بجے کے قریب نٹی پٹی غار کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے اس ایڈونچر کا پہلا گھنٹہ بہت بہترین رہا، کیونکہ شروع میں اس غار کی چوڑائی اتنی تو تھی کہ آدمی اس میں بغیر کسی پریشانی کے آگے بڑھ سکتا تھا، اور 1 گھنٹے بعد وہ لوگ اس غار کے ایک حصہ جسے بگ سلائیڈ کہتے ہیں اس میں داخل ہو چکے تھے۔ بگ سلائیڈ ایک کافی بڑی جگہ تھی جہاں یہ 11 کے 11 لوگ اتر کر جمع ہو سکتے تھے اور اب انہیں وہاں سے نکل کر آگے کی طرف بڑھنا تھا۔ جوش نے بڑے بھائی جون کو چیلنج دیا کہ اب ہم غار کے دی برتھ کینال والے حصے میں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہے۔ دراصل اس غار کا برتھ کینال والا حصہ بہت ہی زیادہ تنگ اور پتلا تھا اور اس حصے میں آج تک بہت ہی کم کیو ایکسپلورر جا پائے تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو وہاں جانے کے لیے چیلنج کر دیا۔ ساتھ ہی ان کے دیگر ساتھی یہ بھی باتیں کرنے لگے کہ برتھ کینال غار کا وہی حصہ ہے جہاں پہلے بہت سے لوگ کئی گھنٹوں کے لیے پھنس چکے تھے اور انہیں ریسکیو کر کے وہاں سے نکالنا پڑا تھا۔ تب جون نے تجربہ کار اور بڑے ہونے کے ناطے جوش کو کہا کہ وہ سب سے آگے ان کی رہنمائی کرے گا اور جوش سمیت باقی دیگر لوگ اسے فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہاں ایک وقت میں ایک ہی انسان آگے بڑھ سکتا تھا۔ وہ لوگ گھسٹتے ہوئے رینگ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن جب برتھ کینال والا حصہ آیا تو جون کنفیوز ہو گیا۔ دراصل یہاں سے ایک ساتھ 3 راستے مختلف سمتوں کی طرف نکل رہے تھے۔ برتھ کینال جہاں انہیں جانا تھا وہ سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ کی طرف تھا، لیکن چونکہ جون اس سے پہلے کبھی بھی وہاں نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان راستوں پر کوئی نشان یا سائن بورڈ وغیرہ لگا تھا جس سے صحیح راستے کی نشاندہی ہو سکتی، لہٰذا جون پریشان ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں سے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ سب سے آگے وہی تھا اور اس کے پیچھے والے لوگ آگے کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جون کو اب کوئی نہ کوئی فیصلہ تو بہرحال کرنا تھا، لہٰذا وہ بائیں ہاتھ والے راستے کی طرف مڑ گیا، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ جب اس نے بائیں طرف ٹرن لیا اور گھسٹ کر اندر جانا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ بہت ہی زیادہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں آگے جانا بھی تقریباً ناممکن تھا۔
وہ सांस रोक कर किसी न किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे उसके बाद आगे की तरफ थोड़ा खुला हिस्सा नजर आ रहा था। इसका ख्याल था कि एक बार वो ये तंग रास्ता अबूर करके आगे खुले हिस्से में पहुंच गया तो वहां से वापस मुड़कर सबको एक बार बता देगा कि उन लोगों ने गलत टर्न ले लिया है। लेकिन जैसे ही बड़ी मुश्किलों से उसने ये तंग रास्ता अबूर किया, वो फिसला और सर के बल जाकर एक पत्थर से जा टकराया, क्योंकि उससे आगे कोई रास्ता था ही नहीं। वहां पर जाकर ये गार बंद हो चुका था। अब सूरत हाल ये थी कि जॉन सर के बल इस पतली सी गार में फंस चुका था। मजीद ये कि उसके दोनों हाथ भी पीछे की तरफ ही रह गए थे और वो बाहर निकलने के लिए हाथ पांव भी नहीं मार सकता था। तब उसके पीछे आ रहे उसके भाई जोश को संगीन गड़बड़ का एहसास हुआ। वो घबरा गया। उसने जॉन से बात की और उसे अपने पांव में फंसाकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूरन उन्होंने जॉन को वहीं छोड़ा और बाहर आकर गार के मैनेजमेंट सिस्टम एहलकार को बताया कि अंदर क्या सूरत हाल पेश आ चुकी है। इमरजेंसी सर्विसेज को यहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगने वाले थे। इस दौरान जोश दोबारा जॉन के पास वापस जा चुका था। 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम गार के दहाने पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जाहिर है ये सब गार के अंदर नहीं जा सकते थे। इस टीम को सूसी नाम की एक लोकल वॉलंटियर हेड कर रही थी। उसने गार के अंदर जाकर सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसने जॉन को तसल्ली भी दी कि वो जल्द ही उसे बाहर निकाल लेंगे। तकरीबन 2 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद उसने हार मान ली और वापस गार से बाहर आ गई। इस दौरान दीगर अथॉरिटीज के लोग और टीमें भी वहां पहुंच चुकी थी। अब सब मिलकर कोई ऐसा प्लान सोच रहे थे जिसके जरिए जॉन को बाहर निकाला जा सके। एक आइडिया ये भी दिया गया कि जॉन के पैरों को अगर काट दिया जाए तो उसे बासानी बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ये आइडिया देने वालों को अंदर की सिचुएशन का अंदाजा ही नहीं था कि गार के जिस हिस्से में जॉन फंसा हुआ है वो कितना पतला और तंग है। एक दूसरा आइडिया ये सामने आया कि क्यों ना दीवारों पर तेल लगाकर उसे फिसलन ज़दा बना दिया जाए, ताकि जब जॉन को बाहर खींचा जाए तो वो आसानी से बाहर आ जाए। लेकिन जो भी इस किस्म के ऊट पटांग आइडियाज दे रहे थे, उन सबको वहां से बाहर निकाल दिया गया। आखिरकार एक ढंग का आइडिया सामने आया। इस आइडिया के मुताबिक अंदर गार में पुलिस नस्ब करके रस्सियों को उसके ऊपर से गुजार कर जॉन के पाँव में बांधना था और फिर खींचा जाना था। इस तरह जॉन को खींचने में बहुत आसानी रहती। लेकिन यहाँ एक मसला और पैदा हो गया। दरअसल वो डायमंड कटर ड्रिल मशीन साथ लेकर नहीं गए, जो इस किस्म की चट्टानों को काटने के काम आती है। इसके बजाय वो आम ड्रिल मशीन साथ ले गए और नटी पटी की सख्त चट्टानों में सुराख करना इन आम ड्रिल मशीनों के बस की बात थी ही नहीं। और इन्हें वापस बाहर आकर बार बार ड्रिल मशीन तब्दील करने में बहुत वक्त लग गया। आखिरकार कई घंटों बाद स्पेशल ड्रिल मशीनों से चट्टानों में सुराख किए गए ताकि उनमें पुलिस के नट वगैरह लगाए जा सकें। एक नया मसला ये सामने आया कि बिग स्लाइड से आगे जहां ये पुलिस नस्ब करनी थी, वहां एक वक्त में एक ही आदमी आगे जा सकता था और उसे अपने साथ मशीनें और रस्सियां वगैरह भी ले जानी थी। इसके लिए बार बार आदमी तब्दील करने पड़ रहे थे और इसमें काफी टाइम खर्च हो रहा था। अब सुबह हो चुकी थी और यहाँ एक सबसे बड़ा मसला पेश आ गया। जब गार के बाहर मौजूद डॉक्टरों ने, जिनमें हार्ट स्पेशलिस्ट भी मौजूद थे, उन्होंने जॉन की पोजीशन दरियाफ्त की और जब डॉक्टरों को पता चला कि जॉन के पांव ऊपर की तरफ हैं और वो सर के बल टेढ़ा फंसा हुआ है, तो उसके बाद डॉक्टरों ने जो राय दी उसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टरों ने बताया कि जॉन 12 या 13 घंटे ही जिंदा रह पाएगा, क्योंकि उल्टा होने की वजह से जॉन का दिल खून ठीक तरह से पंप नहीं कर पा रहा था और जिस्म के निचले हिस्से में खून जमा होने लगा था और 12 या 13 घंटों बाद जॉन के जिस्म में खून अंदर लीक होने लगेगा और जॉन के फेफड़ों और गुर्दों में भी जा सकता है। और इस बात का पूरा इम्कान था कि जॉन को हार्ट अटैक भी आ जाए। ये सुनकर रेस्क्यू टीम ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान तमाम पुलिस भी नस्ब हो चुकी थी और रस्सियों को इन पुलिस के ऊपर से गुजार कर जॉन के पांव से बांध दिया गया और इसके बाद इसे खींचना शुरू कर दिया गया। जॉन का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। जिंदगी की उम्मीद जागते ही जॉन खुद भी कोशिश करके खुद को ऊपर उठाने लगा। सबको उम्मीद थी कि अब जॉन को बाहर निकाल ही लिया जाएगा। जॉन के चेहरे पर भी उम्मीद की किरण जागी थी,
सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक पुली जो कि सबसे मेन थी और फ्रंट पर लगी हुई थी, उसका एक नट सुराख से बाहर आ गया और पुली टूट गई। जॉन जो कि काफी ऊपर आ चुका था, एक बार फिर से सर के बल जाकर इसी सुराख में जा गिरा। जॉन को इस पोजीशन में फंसे अब 19 घंटे बीत चुके थे। इसका दिल अब भी काम कर रहा था। ऊपर मौजूद डॉक्टर खुद हैरान थे कि आखिर जॉन अब तक जिंदा कैसे है। शायद उसकी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत थी। एक बार फिर से पुलिस सिस्टम बनाया गया और एक बार फिर जॉन के पाँव में रस्सी बांधकर उसे खींचा जाने लगा। पहली बार जॉन बाहर आने ही वाला था और तब पहली बार जिन रेस्क्यूअर्स की नजर उसके चेहरे पर पड़ी थी, तो उन्होंने बाद में बताया कि जॉन का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। इसकी आंखें सलेटी रंग की हो चुकी थी और आंखों की पुतलियां पूरी तरह खुली हुई थी, क्योंकि जॉन पिछले 19 घंटों से मुसलसल अंधेरे में था। वहां रोशनी जाने का कोई जरिया नहीं था। करीब था कि जॉन को बाहर निकाल लिया जाता, लेकिन यहाँ एक बार फिर से एक संगीन गड़बड़ हो गई। पिछली बार तो सिर्फ एक पुली का नट खुला था, लेकिन इस बार एक साथ कई नट खुल गए और इसके साथ ही पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा रेस्क्यूअर के मुंह पर गिरा, जो जॉन के सबसे ज्यादा करीब था और इस सारे अमल को लीड कर रहा था। नस्ब की गई तमाम पुलिस भी बाहर आ गई और जॉन, जिसके दिल में जिंदगी की एक आखिरी उम्मीद जागी थी, एक बार फिर उसी जगह में जा गिरा। अब सूरत हाल ये थी कि जिस रेस्क्यूअर के चेहरे पर पत्थर गिरा था वो बेहोश हो चुका था और यहाँ एक वक्त में एक ही शख्स हो सकता था, क्योंकि गार की चौड़ाई इतनी नहीं थी। सब जॉन को भूलकर इस रेस्क्यू एहलकार को निकालने में लग गए, क्योंकि उसको निकाले बगैर वो जॉन तक नहीं पहुंच सकते थे। चुनांचे किसी न किसी तरह इस बेहोश रेस्क्यू एहलकार को गार से बाहर निकाला गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसी दौरान जॉन को दिल का शदीद दौरा पड़ा। इसकी सांसें अब लगभग खत्म हो चुकी थी। एक पैरामेडिक ऑफिसर को गार में नीचे उतारा गया। उस डॉक्टर ने अपने स्पेशल आलात की मदद से काफी देर तक जॉन का मुआयना किया और जब वो गार से वापस बाहर आया तो उसने ऐलान कर दिया कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा। 28 घंटे बाद 11:50 पर इंतजामिया ने जॉन को मुर्दा करार दे दिया। तब इंतजामिया ने इसकी लाश को बाहर निकालने पर गौर किया, लेकिन जिंदा इंसान को बाहर नहीं निकाला जा सका था, तो अब तो इसे निकालना और भी मुश्किल था। चुनांचे काफी सोचो विचार और जॉन के घर वालों से मशवरे के बाद 26 नवंबर को इस गार को कंक्रीट से भरकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जॉन की लाश आज भी नटी पटी गार में इसी जगह मौजूद है जहां उस दिन वो फंसा था। जॉन के घर वालों ने इस गार के दहाने पर इसकी याद में एक तख्ती लगाई हुई है, जो ये याद दिलाती है कि एक बदकिस्मत इंसान इस गार में जिंदा दफन हो गया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक पायलट जिसका जहाज अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में क्रैश हो गया था, इस पायलट ने इस खतरनाक जंगल में 36 दिन कैसे गुजारे और कैसे वो तन्हा अमेज़न जंगल से बच निकलने में कामयाब हुआ, वो वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना भी हरगिज मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।